हरि ओम ओम नमः शिवाय। श्री केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। हरि ओम। तो पिछले वीडियो में हमने गायत्री मंत्र के विषय में गहन चिंतन करना प्रारंभ किया, और यह मैंने स्वामी काशिकानंद गिरि जी महाराज द्वारा रचित एक पुस्तक से पढ़ना प्रारंभ किया। तो पहले तो उसी को हम जो है दोबारा याद करते हैं। पहले अंग्रेजी में बताऊंगा उसका सारांश, और फिर हिंदी में, और उसके बाद आगे पढ़ना हम प्रारंभ करेंगे। So in the previous video, we studied the in-depth exploration of the Gayatri Mantra, and it draws from various scriptural interpretations and the insights from Swami Kashikanand Giriji Maharaj. It emphasized the profound significance of the Gayatri Mantra for followers of the Vedic tradition and explains that the mantra's true power lies in understanding its meaning. If you don't understand the meaning, then mantras are still helpful, powerful, but it adds value, significant value, if you are able to understand the meaning, because then you can take advantage of the visual imagery and really start seeing the mantras, seeing the real strength of the mantra. As we call it mantra in Hindi, not mantra, but so, what is the origin and significance of Gayatri Mantra? The Gayatri Mantra was revealed to Vishwamitra sage. Vishwa means world, Mitra means friend. So he became the real friend of the world, because of his benevolence, which was actualized through this mantra, the Gayatri Mantra. It's not really specific for any specific community. It's just not meant for only Hindus. Its meaning is just not meant for only Hindu gods. It's for everyone. And we'll talk about the meaning in a little bit. We'll talk about the meaning of this mantra in a little bit. So it's very important to understand the meaning of the mantra. And it was revealed to Vishwamitra, the friend of the world. Vishwa means the world, the Mitra means the friend in Sanskrit, in Hindi. The mantra is considered a universal benefactor. It promotes global well being, not just of any specific community, not just of Hindus or Sanatanis, as we call them. It is universal benefactor, helps the entire world and dispels the darkness, just like the way the sun eliminates the world. It is believed to eliminate all our sins and foster the development of virtues. And we'll learn about it. Why? The power of pratibha gyan, intuitive knowledge, is another aspect that's linked with Gayatri Mantra. In this the previous video, we illustrated the concept of pratibha gyan, the intuitive knowledge, with an anecdote where a mother who had this intuitive premonition that train accident would occur, and thus she saved her son. And intuition does happen to people. It does happen to us as well. A lot of time we have this intuition that let's not do this. And then that helps us have benefit. Or we have the intuition, but we still go against the intuition and bad things happen. And we're like, oh, I wish I had listened to my own intuition, right? So similarly, the rishis, the sages, the rishis, they were able to have these intuitions. This is a pratibha gyan, the intuitive knowledge, which would appear to them in the form of mantras. So the Vedic mantras, the mantras from the oldest texts available to the human mankind, are the Vedas. And they are the mantras, the mantras listed in those Vedas are considered to be the manifestation of such intuitive wisdom gained by rishis, the sages, through their intense spiritual discipline. They used to live a very disciplined life and build upon the intuitive power over time of their spiritual life.
The Gayatri mantra contributes to human development. Humans are unique due to their capacity of discernment and speech. Only humans have this ability. We can speak and we can discern the finer aspects of things going on in our lives, our people's lives. We have the power of intuition. So the Gayatri mantra serves as a tool to cultivate this discernment and guide individuals towards what? Righteous actions and spiritual realization. The mantra promotes self reflection and awareness, encouraging individuals to choose good over bad, eternal over temporary. Then, what is the importance of understanding the mantra's meaning? Merely chanting the mantra without understanding its meaning, not just Gayatri mantra, but any mantra in our spiritual world, without understanding the meaning, it is less effective. The mantra is intended to inspire good actions. Mantra is expected to inspire us. In fact, all the Sanskrit stanzas, the mantras that we hear from our pandits in the temples during a range of different pujas, like Swasti Vachan, it talks about, oh God, everything be good. Let great good thoughts come to our mind. Please create an environment where we hear good virtues, good things. That is what these mantras are telling. So mantras create this positive environment around us. And without understanding the meaning, well, there will be some benefit, but there is more benefit if we can understand the meaning and then recite the mantras. So the mantra is intended to inspire good actions and cultivate positive thoughts, leading to well-being of just not me, just not my Hindu community, the entire world. The Vedas, the Puranas, the Sanatan life, it starts from the creation, the onset of the creation. We talk about, so this is from the very beginning of what began. It doesn't belong to any particular community. It just doesn't belong to me or my country. It belongs to every human being on this Mother Earth, this planet, the speaker. So this mantra is intended to inspire good action and cultivate positive thoughts. And then we advocated in the previous video that we should initiate children into Gayatri mantra early in life. That's why we do the Upanayan Sanskar or Janev before the age of 5, at least before the age of 8, to instill good values and promote positive thought processes. Sooner they learn the mantra and start reflecting upon it and reflecting the positivities, that will make them a better citizen. Then this mantra addresses the roots of disease and suffering. If we understand the idea of Bhut Prakop, the elemental imbalance which leads to diseases and suffering in the body and environment, we'll better understand this. Because when there's a balance. That's why things are going in a cycle. Okay, every season, the next season, overall there is this kind of a balance. There is little imbalance. That little imbalance is needed so that things happen in cycle, so that the world runs the way it is supposed to. But when there is a significant imbalance, then there will be problem. The imbalance is attributed to dharma viplav, decline of righteousness, where people stray from moral conduct and spiritual practices. The ultimate cause of all suffering is identified as pragya, aparadh, offense against wisdom or intellect, which refers to the misuse of negligence of one's intellect. Gayatri mantra is presented as the solution to pragya aparadh, as it inspires wisdom and proper discernment. Why? Look, the mantra essentially tells that, oh God, give us this power, energy, strength, so that we are able to achieve what? Prachodayat. Just not inspiration, but good inspiration.
It's just not prerna, but prachodayat. The word prachodayat is used in the context of not bad things. It's always used in the context of some good, positive stimulus. Prerana, as we say in Hindi. But the mantra doesn't use the word prerana, it uses the word prachodayat. Prachodayat has that specific meaning, positive prerana, positivity, goodness. So Gayatri mantra is presented as the solution to pragya aparad, as it inspires what? Wisdom and proper discernment. The solar deity and healing aspects of Gayatri mantra were also discussed in the previous video. The presiding deity of the Gayatri mantra is the sun. Sun, the word for sun is Surya, but the other word for sun is what? Mitra. The word Mitra, because sun is also called, in a way, it can be called Chakshu, the eyes. We need light, we need some light around, right? Bulbs. That doesn't provide. There was no need for having eyes if there was no sun, because it's the sun that gives the light. There was no need for having skin if there was no wind, and there was no need for having the sensation of touch. So these things are created because there is a corresponding element in the environment with which we are connected. If there was no light, there was no sun, there was no need for having eyes. Sun is called the eyes because it illuminates the entire world. Gayatri is considered to be another friend because it provides goodness, good thoughts, stimulates you to think good. So in a way, it is itself a Vishwamitra because it's the benefactor of the entire world. So the sun is also, we discussed in the video that sun is also considered as the stimulator of consciousness of the life force. हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सदधार पृथ्वीं द्यामुतेमं तस्मै देवाय हविषा विधेम. And then we concluded by reiterating that Gayatri mantra is the universal benefactor that helps ordinary people achieve a healthy life, blesses devotees with health and wisdom, and provides a spiritual liberation to the enlightened. It emphasizes that understanding the mantra's meaning and purpose is crucial for realizing its real benefit. तो हमने पिछले वीडियो में यह जाना हमने कि गायत्री मंत्र की उत्पत्ति और उसका महत्व क्या है वगैरह वगैरह, और यह बहुत आवश्यक है कि हम इसके अर्थ को समझें. मैंने कौशिकानंद गिरी जी महाराज की द्वारा रचित एक पुस्तक से पढ़ना प्रारंभ किया, जिसमें कि इस बात पर जोर दिया गया है कि वैदिक परंपरा के अनुयायियों के लिए गायत्री मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और मंत्र की सच्ची शक्ति इसके अर्थ और उद्देश्य को समझने में निहित है. गायत्री मंत्र की उत्पत्ति और महत्व यह है कि पहले तो हमें यह जानना होगा कि यह मंत्र जो है ऋषि विश्वामित्र को प्राप्त हुआ, जो अपनी परोपकारता के कारण विश्व के मित्र बन गए. विश्वामित्र शब्द जो है वह उनके विश्व के मित्र, उनकी परोपकारता के कारण हुआ, जिसे इस मंत्र के माध्यम से साकार किया गया था. गायत्री मंत्र जो है वह सबके लिए, सारे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा उनकी देन है. यह मंत्र एक सार्वभौमिक उपकारक माना जाता है जो वैश्विक कल्याण को बढ़ा देता है और अंधकार को दूर करता है. जैसे सूर्य विश्व को प्रकाशित करता है, इसलिए सूर्य को भी मित्र कहा गया है. यह पापों को समाप्त करने और सद्गुणों के विकास को बढ़ावा देने वाला मंत्र माना जाता है. इसके माध्यम से प्रतिभा ज्ञान की शक्ति बढ़ती है. वक्ता जो कि मैं था, इस पुस्तक में एक कथा बताई गई है कि एक माँ को
पूर्वाभास हुआ कि ट्रेन की दुर्घटना हो जाएगी, और इस बात को मानने से पुत्र की जान बच गई और जो लोग गए उनका एक्सीडेंट हो गया। कहने का अर्थ यह है कि बहुत लोगों को प्रतिभा ज्ञान होता है, बहुत लोगों को पहले से आभास होता है, पूर्वाभास होता है। ऋषि लोगों को उनके मेडिटेशन से, उनकी जीवन शैली से इस प्रतिभा ज्ञान की शक्ति बढ़ाने को मिल जाती थी, और उनको जो है ये मंत्र साक्षात दिखते थे। वो उनके मंत्रों के दृष्टा हुए। हमारे वैदिक मंत्र जो हैं उनका विनियोग हम पढ़ें तो उसमें दिया रहता है कि किन मुनि, किन ऋषि को मंत्र दिखा, किन देवता के लिए और किस कारण से है। यहाँ तक कहा जाता है कि वैदिक मंत्रों को अगर उनके विनियोग के बगैर पढ़ा गया तो उसका फल नहीं मिलता है। तो वैदिक मंत्रों को गहन आध्यात्मिक अनुशासन के माध्यम से ऋषियों द्वारा प्राप्त ऐसी सहज बुद्धिमता की अभिव्यक्ति माना जाता है। किन सहज बुद्धिमता की? पूर्वाभास। मानव विकास में गायत्री मंत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। मनुष्य में क्या खासियत है? मनुष्य में खासियत है कि मनुष्य अपनी विवेक और वाणी की क्षमता के द्वारा ही अद्वितीय है। जो हमने डिसर्नमेंट कहा, विजडम एंड डिसर्नमेंट, मनुष्य में ही वाणी की क्षमता है, मनुष्य में ही विवेक है। दूसरे जानवरों में इस प्रकार का विवेक नहीं है, वाणी नहीं है। गायत्री मंत्र इस विवेक को विकसित करने और व्यक्तियों को धार्मिक कार्यों और आध्यात्मिक बोध की ओर मार्गदर्शन के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। इसमें शब्द आता है प्रचोदयात, सत्कर्मों की तरफ प्रेरणा। प्रेरणा शब्द नहीं उस इस्तेमाल हुआ है, प्रचोदयात शब्द इस्तेमाल हुआ है। प्रेरणा, सिर्फ प्रेरणा नहीं, सत्कर्मों की तरफ प्रेरणा, उसको प्रचोदयात कहते हैं। तो भगवान से हम जितने बार यह मंत्र पढ़ते हैं तो भगवान सूर्य के अंदर विद्यमान जगत के कारण परमात्मा, उनसे हम यह कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी बुद्धि कहाँ लगाना? सत्कर्म में प्रेरणा, सत्कर्मों में प्रेरित करना, ऐसा हम कहते हैं। यह मंत्र आत्मचिंतन और जागरूकता को इसलिए बढ़ावा देता है, व्यक्तियों को बुराई पर अच्छाई और अस्थाई पर शाश्वत को चुनने के लिए प्रोत्साहित करता है। जो चीज अस्थाई है उसका क्या फायदा? यह शरीर नित्य नहीं है। नित्य कौन है? परम ब्रह्म, परमात्मा, उसमें मन लगाना है। सुख दुख नित्य नहीं है। सुख बनता है जिस दिन से, उसी दिन से उसको खत्म होने का एक तारीख लग जाता है। जीवन मिलता है तो उसके खत्म होने का एक तारीख लग जाता है। दुख आता है वो भी नित्य नहीं है, वो भी अनित्य ही है। यह मंत्र हमको इन बातों की तरफ, सकारात्मक विचारों की तरफ, उनकी प्रक्रिया को समझने की तरफ बढ़ावा देता है। और इसलिए बच्चों को अच्छे मूल्यों को स्थापित करने और सकारात्मक विचारों को विकसित करने के लिए उन्हें गायत्री मंत्र का ज्ञान दिया जाता है, और वह बाल्यावस्था में ही दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बालक को अगर ब्रह्म का अन्वेषण और ब्रह्म प्राप्ति कराना चाहते हैं तो उनका आप जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार बाल्यावस्था में करें। माना जाता है कि 5 साल से पहले करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में फिर वो जो अपने गुरु के पास आके वेद वगैरह के ज्ञान प्राप्त करते थे। अब तो वो समाज रहा नहीं उस प्रकार का, उतने सीरियसली लोग कम करते हैं। लेकिन उसका लाभ यही है, हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, लेकिन वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का ज्ञान हमें एक अच्छे मार्ग पे जाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने में बहुत मददगार सिद्ध होता है। आप बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में जाके बहुत अच्छे कंप्यूटर साइंटिस्ट बन सकते हैं, लेकिन किस प्रकार से उसका उपयोग करते हैं उससे उसका समाज को लाभ या नुकसान होता है। लाभ तब होगा जब आप गायत्री मंत्र या इसी प्रकार की बातों में अपना जो है मन लगाएंगे और उसके द्वारा निर्देशित कार्यों को करेंगे। अच्छाई बुराई पहले भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी, लेकिन सत्कर्मों की तरफ प्रोत्साहन मिले समाज में, लोगों को यही एक इच्छा होती है। तो बच्चों को जनेऊ कराने का यही फायदा है, यज्ञोपवीत संस्कार। गायत्री मंत्र से रोग और पीड़ा के मूल कारणों का समाधान भी होता है। भूत प्रकोप, तत्वीय असंतुलन,
शरीर और पर्यावरण में बीमारियां और पीड़ा होती हैं। सारा पर्यावरण में एक प्रकार का संतुलन है, थोड़ा संतुलन है, जिसके कारण कि पर्यावरण गोल 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 चलता है। ग्रीष्म ऋतुएं जो है बदलती हैं जैसे कि। लेकिन अगर असंतुलन ज्यादा हो गया तो जरूरत से ज्यादा बारिश होगी, बाढ़ आएगी, नुकसान होगा। जरूरत से ज्यादा ठंडी होगी। तो इस प्रकार के असंतुलन को खत्म करने का मार्ग भी जो है वह गायत्री मंत्र है, जिसके विषय में हमने पहले वीडियो में पढ़ा। सभी पीड़ा का अंतिम कारण प्रज्ञा अपराध, बुद्धि के प्रति अपराध के रूप में पहचाना जाता है, जो किसी की बुद्धि के दुरुपयोग या लापरवाही को संदर्भित करता है। गायत्री मंत्र को प्रज्ञा अपराध का समाधान प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि यह ज्ञान और उचित विवेक को प्रेरित करता है। गायत्री मंत्र के अधिष्ठाता देवता सूर्य देव है। गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को ध्यान करने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है और कल्याण को बढ़ावा मिलता है। सूर्य को चेतना और जीव शक्ति का उद्दीपक बताया गया है। तो निष्कर्ष यही है कि गायत्री मंत्र एक सार्वभौमिक उपकारक है, जो सामान्य लोगों को स्वस्थ जीवन प्राप्त करने में मदद करता है, भक्तों को स्वास्थ्य और ज्ञान का आशीर्वाद देता है और प्रबुद्ध लोगों को अज्ञानता से मुक्ति दिलाता है। यह इस बात पर भी जोर देता है, पहले वीडियो में इस बात पर भी हमने जोर दिया कि मंत्र के अर्थ और उसके उद्देश्य को समझना बहुत आवश्यकता है, तभी उससे पूर्ण लाभ को प्राप्त किया जा सकता है। हरिओम, ओम नमः शिवाय। अब इसके आगे हम जो है पृष्ठ संख्या 19 से आगे पढ़ना और विवेचन करना प्रारंभ करेंगे। तो हम आगे अध्ययन करेंगे चौथे अंश से पृष्ठ संख्या 20। प्रज्ञापराधहरणीं चित्ते नैर्मल्य पकारिणीं धर्मार्थ काम फलदां गायत्री मोक्षदां भजे। प्रचोद्य सारथिं बुद्धिं या संसार निवर्तयेत् न ये च नरैः न ये च नैर्ह पदं विष्णोर्गायत्री तामुपास्महे। यहाँ तक हमने यह देखा कि प्रज्ञा पराधो ही मूलम सर्व रोगाणाम, चाहे देह रोग हो चाहे भव रोग हो, सबका मूल प्रज्ञा अपराध है। उस अपराध से छुटकारा पाने के लिए और मोक्ष आदि प्राप्त करने के लिए गायत्री मंत्र उपाय है। गायत्री मंत्र प्रज्ञा अपराध हरण पूर्वक परम गति प्रदान कैसे करता है, उसके लिए अन्य किस साधन की सहकारिता आवश्यक है इत्यादि प्रश्न पुनः अवशिष्ट हैं। प्रज्ञापराध का हरण एक तो स्वयं शक्ति युक्त पवित्र होने से होता है। प्रज्ञा अपराध से छुटकारा पाना है तो क्या करना है, स्वयं शक्ति युक्त पवित्र होना हो पड़ेगा। गायत्री वेद जननी गायत्री पापनाशिनी गायत्र्यास्तु परम नास्ति दिवी चेह च पावनम इत्यादि रीति योगी याज्ञवल्क्य ने तथा कूर्म पुराण आदि में बताया है। पाप नाश आदि से चित्त निर्मल होता है, ज्ञान का उदय होता है। कठोपनिषद में इस मानव शरीर का रथ रूप से वर्णन कर बुद्धि को सारथी के रूप में बताया गया है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इत्यादि। यह आत्मा रथी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रिया घोड़े हैं इत्यादि। अब सोचिए इस बारे में, यह आत्मा रथी है, शरीर रथ है और बुद्धि सारथी है। बुद्धि जिस तरफ ले जाएगा उसी तरफ जाएंगे, और लगाम क्या है, मन। मन अगर जो है बुद्धि को कंट्रोल करेगा तो रथ उसके हिसाब से चलेगा। और घोड़े कौन है, इंद्रियां। इंद्रियां ही तो भड़काती हैं, बहकाती हैं। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। विज्ञान सारथीर्यस्तु मनः प्रग्रहवानरः विज्ञान सारथीर्यस्तु मनः प्रग्रहवानरः सोध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णु परमं पदम्
सोध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम। विज्ञान अर्थात सद्बुद्धि को सारथी एवं संयत मन को लगाम बनाकर जो इस शरीर रथ से आगे बढ़ता है, वह मार्ग को पूरा कर गंतव्य स्थान परमात्म पद को प्राप्त होता है। सद्बुद्धि को सारथी एवं संयत मन को लगाम बनाकर जो इस शरीर रूपी रथ से आगे बढ़ता है, वह मार्ग को पूरा कर गंतव्य स्थान परमात्मा पद को प्राप्त होता है। यह मानव शरीर केवल एक यान नहीं है, यह रथ है। रम धातु से कथन प्रत्यय जोड़कर रथ शब्द बनता है। रिम्यते यत्र अनेन इत्यादि विग्रह है। यान बोलते तो जाना ही जाना। पुनर्वसु कहते हैं आगे चरक ऋषि कि इसलिए कि धर्म विप्लव होने लगा है, वर्णाश्रमियों का धर्म नष्ट हो रहा है, यज्ञ याग आदि लुप्त होते जा रहे हैं, यज्ञ आदि कर्म परम श्रेयस्कर हैं। अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यगादित्यमुपतिष्ठते आदित्याज जायते वृष्टेस्ततो यन्नः ततः प्रजाः। अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यगादित्यमुपतिष्ठते आदित्याज जायते वृष्टिस्ततो यान्नम ततः प्रजा। अग्नि में डाली हुई आहुति सूक्ष्म रूप से आदित्य किरणों में मिल जाती है। आदित्य किरणों से ही पर्जन्य मेघ होता है, उससे वृष्टि होती है और प्रजोत्पत्ति होती है, प्रजा की उत्पत्ति होती है। यज्ञ से जो मेघ होता है, बादल आते हैं, वृष्टि होती है, उससे उत्पन्न अन्न में जीवन शक्ति विशेष रूप से होती है। कृत्रिम खाद से, बनावटी जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर है, वह कृत्रिम खाद से अन्न भले अधिक हो पर जीवन शक्ति कम रहती है। पहले के समय में सर्वत्र नियमित वेद घोष होता था जो आकाश शक्ति को बढ़ाता था। होम आदि से अग्नि शक्ति की वृद्धि होती थी, साथ ही जल शक्ति की भी। रुद्राभिषेक आदि भी जल शक्ति वर्धक है। जो हम रुद्राभिषेक करते हैं उससे भी जल शक्ति वर्धन होता है। इसलिए यह वचन प्रसिद्ध है क्या? न तीर्थ पादोदक कर्दमानी न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि शमशान तुल्यानि गृहाणितानि। गुरु ब्राह्मण आदि तीर्थ रूप हैं। गुरु ब्राह्मण वगैरह ये तीर्थ के समान है। उनके चरणोदक से ग्रह पवित्र होता है। उनके चरणोदक से ग्रह हमारा पवित्र होता है। वेद शास्त्र ध्वनि से अंतरिक्ष पवित्र होता है। स्वाहा स्वधाकार रूपी होम आदि से अग्नि की पवित्रता और उसी के धूम से वायु की, वातावरण की पवित्रता होती है। इनके अभाव में तो शमशान तुल्य ही घर समझो। न तीर्थ पादोदक कर्दमानि न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा सदाकार विवर्जितानि शमशान तुल्यानि गृहाणितानि। लोग ब्रह्मचारी बनकर ब्रह्मचर्य पालन के साथ वेदाध्ययन आदि सम्यक नहीं करते, अच्छे प्रकार से नहीं करते। गृहस्थ सत्य अहिंसा आदि के साथ पंच यज्ञ आदि संपादन नहीं करते। वानप्रस्थ होकर तपस्या नहीं करते। सन्यासी होकर संग परित्याग के साथ ब्रह्म चिंतन में संलग्न नहीं होते। सन्यासी बन जाते हैं पर संग परित्याग नहीं करते, ब्रह्म के चिंतन में नहीं लगते। इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म विप्लव होने से भूत प्रकोप होता है। यह धर्म, तो अग्निवेश पूछते हैं कि यह धर्म विप्लव क्यों होने लगा, लोग क्यों धर्मच्युत होने लगे, धर्म से क्यों गिरते जा रहे हैं? तो पुनर्वसु कहते हैं कि लोगों में भोग आसक्ति बढ़ गई, उनका हृदय राग द्वेष कलुषित होने लगा। स्वर्ग नरक इह परलोक ईश्वर गुरु आदि में उनका विश्वास नहीं रहा। भोग आसक्ति के ही कारण इंद्रिय संयम का अभाव होने लगा। संध्या अग्निहोत्र आदि कर्म से लोग विमुख होने लगे। अनेक चित्ता विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेषु शौ। अनेक चित्ता विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेषु चौ।
अनेक प्रकार के चित्त भ्रम होने लगे, अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक प्रकार के चित्त भ्रम होने लगे, लोग मोहजाल में फंसने लगे, मोहजाल समावृता। ऐसे लोग काम भोग में आसक्त एवं प्रसक्त होकर असुचि नरक में पड़ते हैं। प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके शुचौ। मरणोत्तर जो नरक है सो है ही, यह लोग में भी नरक दर्शन होने लगता है। जवानी में प्रवेश होने से पूर्व ही, पहले ही बुढ़ापा आ गया। जमाना था जब ऋषि लिखते थे अष्टचत्वारिंशद वर्षाणि सार्ववेद ब्रह्मचर्यमाम, 48 वर्ष तक चारों वेदों के अध्ययन के लिए ब्रह्मचर्य पालन करते थे पहले, 48। अब तो 12-15 वर्ष में ही बालक काम भोग आसक्त होने लगते हैं, 48 तक तो बूढ़े ही हो जाते हैं। अग्निवेश पूछते हैं अपने ऋषि से, अपने गुरु से, पुनर्वसु जी से, कि भोग आसक्ति बढ़ने में क्या कारण है। तो ऋषि कहते हैं, चरक ऋषि, पुनर्वसु ऋषि, कि विचारहीनता से होने वाला चित्त का चांचल्य। बिना विचार किए ही चित्त जो है, मन जो है वो चंचल हो गया है। इंद्रिया वैसे ही स्वयं चंचल है। परांचिखानी व्यात्रणता स्वयंभू, इस प्रकार उपनिषद मंत्र ही कहता है। विचार शक्ति, विचार से काल आंतरीय परिणाम ज्ञान होता है। विचार से कालांतरीय परिणाम ज्ञान होता है। केवल देखने से जो ज्ञान होता है वह सामान्य ज्ञान से आगे नहीं बढ़ता। प्रथम देखने पर जो ज्ञान होता है वही पशु में रहता है। पश्यति केवलम इति पशु, जो देखने से हमें ज्ञान होता है वह, इसके आगे ऊपर अब सोच समझ के आगे सोचना वह विशेष ज्ञान है जो कि मनुष्यों में होता है। यह विचार से होता है। मनुष्य भी कामी, लोभी, क्रोधी है, परंतु विचार से वह निवृत्त होता है। परदार गमन से पराधात हो सकता है, स्वशक्ति नाश हो सकता है, स्वधर्म एवं नीति का नाश होता है। पर धन, दूसरे के धन के छीनने से मार पड़ सकती है, जेल हो सकता है। अंततः ईश्वरीय सजा से तो कोई छूट ही नहीं सकता। क्रोध से परघात करता है, उसकी भी भविष्य में वैसी ही गति होगी जो कामी और क्रोधी की होती है। अतः ऐसा कार्य ना करना चाहिए। यह विचार जन्य विशेष ज्ञान है। इस विचार के अभाव से भोग आसक्ति आदि होती है, मनुष्य पशुतुल्य होता है। तो विचार जन्य विशेष ज्ञान अगर ना हो, सोचने की क्षमता ना हो, तो इंसान जो है जानवरों की तरह जो है काम करेगा। खाना दिखेगा तो खाने लगेगा, सोचेगा नहीं, गलत काम करेगा। मनुष्य जो है पशु के समान हो जाएगा, भोग में उसकी आसक्ति हो जाएगी। अल्पस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छन विचार मूढ़ प्रतिभासी में त्वम, ऐसी उक्ति प्रसिद्ध है। वर्तमान अल्प सुख है, वर्तमान अल्प सुख है, कम सुख है। परिणाम में बहुत कुछ खोना पड़ जाएगा। उस अल्प सुख के लिए भारी नुकसान करने वाला ही विचार मूढ़ है। तो अग्निवेश पूछते हैं कि क्या कारण है कि लोग विचारहीन होते हैं। तो पुनर्वसु चरक ऋषि कहते हैं कि विवेक शून्यता ही विचारहीन होने में हेतु है। अच्छा क्या, बुरा क्या, स्थायी क्या, क्षणिक क्या, सगुण क्या, सदोष क्या, या विवेक हो तब आगे विचार चल सकता है। वेद शास्त्राध्ययन के बिना, सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता। सत्संगेन बिना नैव विवेको जायते नृणाम, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना, रामचरितमानस में आता है यह, बिना सत्संग, बिना शास्त्र अध्ययन विवेक नहीं हो सकता। तो अग्निवेश आगे पूछते हैं, बोलते हैं कि अविवेक से लेकर विनाश पर्यंत जो अनर्थ परंपरा है, सबका मूल निदान क्या है, यह मैं जानना चाहूंगा कि कैसे उससे ठीक किया जाए, क्योंकि यह कारण परंपरा और लंबी हो सकती है। तो पुनर्वसु कहते हैं, चरक ऋषि कहते हैं कि प्रज्ञा अपराध ही मूल है। यहीं से पुनर्वसु अपना सूत्र प्रारंभ करते हैं। कहते हैं प्रज्ञापराधो मूलम सर्व रोगाणाम, प्रज्ञा का अपराध ही समस्त रोगों का मूल है। चाहे वह बाह्य रोग हो, चाहे आंतरिक रोग हो, चाहे वह शरीर रोग हो, चाहे भव रोग हो, प्रज्ञा के अपराध से शास्त्र एवं संत पुरुषों की अवहेलना होती है। फलतः वह
अविवेकी पशुतुल्य रहता है, प्रत्यक्ष मात्र प्रमाण पर रहता है, उसमें गुण दोष विचार नहीं होगा और उससे अविश्वास एवं भोग आदि आसक्ति होगी, उससे पुण्य पाप का अनुसंधान अभाव होगा, उससे धर्म त्याग और भूत प्रकोप होगा, परिणामतः शरीर रोग और भव रोग स्थायी होकर पतंती नरके शुचौ, वर्तमान में और मरणोत्तर भी नरकपात होगा। छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम, विवेक ही न रहा तो आगे विचार आदि क्यों हो, उसमें रोग अणु का प्रवेश होता है, आत्मनिष्ठा का अभाव होता है, प्रज्ञा ही घी है, बुद्धि है, प्रज्ञा अपराध को दूर करने के लिए ही गायत्री मंत्र है। धियो यो नः प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र से प्रज्ञा अपराध दूर होगा। यह आधि भौतिक तरीके से विचार हुआ, अब आधि दैविक तरीके से भी विचार किया जाए। बुद्धि को प्रेरित करके गायत्री विश्वहित संपन्न कैसे करती है, बुद्धि को किस प्रकार से प्रेरणा देके गायत्री मंत्र जो है विश्वहित संपन्न करती है, विश्व का भला करती है। गायत्री जप से बुद्धि को प्रेरणा मिलती है, गायत्री जप से प्रचोदयात होता है, बुद्धि को प्रेरणा मिलती है और इसी के अर्थ चिंतन से विवेक होने लगता है। और जब इसके अर्थ के विषय में हम गहराई से सोचने लगे तो विवेक भी बढ़ने लगता है। फिर विचार वगैरह भी क्रम से सीक्वेंस में वह विश्वहित कारणी होती है। साधारणतया लोग जप करते हैं किंतु अर्थ अनुसंधान नहीं करते। लोग जप तो करते हैं पर उसके अर्थ को समझने का प्रयास नहीं करते और नियम विधियों का पालन नहीं करते और उसके पीछे जो नियम है वो भी नहीं करते, इसलिए जप करते हुए भी सफल नहीं हो पाते। अतः आधिदैविक चिंतन साथ में होना चाहिए। गायत्री मंत्र का अधिष्ठाता देवता कौन है? सूर्य। सूर्य के लिए यह प्रसिद्ध है क्या? आरोग्यम भास्करादिचित इच्छेत, आरोग्यम भास्करादिच्छेत। आदित्य की उपासना से आरोग्य की प्राप्ति होती है। तेजोमय सूर्य का चिंतन करते हुए गायत्री मंत्र की जपात्मक उपासना करने से सर्व रोगा निवृत्ति होती है। गायत्री जप करने वाले में क्या, जप करने वाले जितने भी हैं सब में एक दोष आ जाता है और वह यह है कि प्रथम कुछ दिन ध्यानपूर्वक भले कर लें किंतु बाद में केवल जप जो है यांत्रिक हो जाता है, बस मंत्र चल रहा है, मुख से मंत्रावृत्ति होती रहती है, हाथ से यंत्रवत माला फिरती रहती है, मन अपना अलग काम कहीं और करता है, दिमाग कहीं और लगा रहता है, बस मुख से जो है मंत्र चलते रहता है, हाथ में माला फिरते रहती है। ऐसा जप यद्यपि सर्वथा निष्फल नहीं है, शब्द अपना काम अवश्य करेगा किंतु जो वास्तविक फल होना चाहिए वह नहीं होता। विधि पूर्वक अनुष्ठान हो तभी वह पूर्ण सफल होता है। गायत्री का जप करते हुए सूर्य का ध्यान करें, विजुअल मेमोरी सोचे, गायत्री का जप करते हुए सूर्य का ध्यान करें तो वह सूर्य भी बुद्धि को प्रेरणा करेगा। सूर्य शब्द का अर्थ बृहदारण्यक उपनिषद में भाष्यकार ने किया है क्या? सुष्ठु इरणाद रसान रश्मीन प्राणान धियो वा, रसों को, रश्मियों को, प्राणों को और बुद्धि को सम्यक इरण प्रेरणा करता है, बहुत अच्छे से इरण प्रेरणा करता है, अतः सूर्य नाम हुआ। सूर्य तापिनी में भी कहा गया है क्या? प्रज्ञा काम भास्करम भगवंतम उपासित। अतः सूर्योपासना से प्रज्ञा प्राप्ति भी होती है, उससे भवरोग निवृत्ति भी संभावित है। सविता का अर्थ भर्ग के साथ एकीभूत होकर हर भी होता है, अर्थात परब्रह्म परमात्मा भी अर्थ है। उस परमात्मा का ध्यान करते हुए गायत्री जप किया जाए तो सर्व संसार हरण समस्तानर्थ निवृत्ति भी होगी। इस प्रकार गायत्री सर्वथा विश्वोपकारिणी है, विश्व के ऊपर उपकार करने वाली है। सामान्य जन को प्रज्ञापराध निवृत्ति के द्वारा सकल रोग निवृत्ति होने से स्वस्थ जीवन प्राप्त होगा। उपासकों के लिए सूर्य भगवान की प्रसन्नता के द्वारा सर्व रोग निवृत्ति तथा प्रज्ञा प्राप्ति दोनों ही होंगी और ज्ञानियों को अज्ञान हरण के द्वारा सर्वानर्थ निवृत्ति रूप मोक्ष का प्राप्ति होगा, लाभ होगा। प्रथम प्रज्ञा अपराध निवृत्ति के द्वारा होगा, द्वितीय सूर्य देवता प्रसाद के द्वारा और तृतीय तत्व बोध की प्राप्ति के द्वारा। तत्व का बोध ज्ञान आवश्यक है। आगे कहते हैं
प्रज्ञापराधहरिणीं चित्तनैर्मल्यकारिणीं धर्मार्थ काम फलदां गायत्री मोक्षदां भजे। प्रचोदय सारथिं बुद्धिं या संसारानि न वर्तयेत् न ये च नैरह पदम विष्णुर्गायत्रीं तामुपास्महे। यहाँ तक हमने यह देखा कि प्रज्ञा अपराधों ही मूलम सर्वरोगाणाम, चाहे देह रोग हो चाहे भव रोग, सबका मूल प्रज्ञापराध है। उस अपराध से छुटकारा पाने के लिए और मोक्ष आदि प्राप्त करने के लिए गायत्री मंत्र उपाय है। गायत्री मंत्र प्रज्ञापराध हरण पूर्वक परम गति प्रदान कैसे करता है, उसके लिए अन्य किस साधन की सहकारिता आवश्यक है और क्या चाहिए उसके लिए इत्यादि प्रश्न पुनः अवशिष्ट है। प्रज्ञापराध का हरण एक तो स्वयं शक्ति युक्त पवित्र होने से होता है। गायत्री वेद जननी गायत्री पापनाशिनी गायत्र्यास्तु परम नास्ति दिवी चेह च पावनम इत्यादि रीति योगी याज्ञवल्क्य ने तथा कूर्म पुराण आदि में बताया है। पाप नाश आदि से चित्त निर्मल होता है, ज्ञानोदय होता है। कठोपनिषद में इस मानव शरीर का रथ रूपक से वर्णन कर बुद्धि को सारथी के रूप में बताया गया है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मना प्रग्रहमेव च। यह आत्मा रथी है, यह हमने पहले पढ़ा कि यह आत्मा रथी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रिया घोड़े हैं इत्यादि। इस रथ से गंतव्य स्थान कौन सा है इसका भी निरूपण किया। विज्ञान सारथीर्यस्तु मनः प्रग्रहवान्नरः सोऽधनः पारमाप्नोति तद्विष्णो परमं पदम। विज्ञान अर्थात सद्बुद्धि को सारथी एवं संयत मन को लगाम बनाकर जो इस शरीर रथ से आगे बढ़ता है, विज्ञान यानी सद्बुद्धि को सारथी एवं संयत मन को लगाम बनाकर जो इस शरीर रथ से आगे बढ़ता है, वह मार्ग को पूरा कर गंतव्य स्थान परमात्मा पद को प्राप्त होता है। यह मानव शरीर केवल एक यान नहीं है, यह रथ है। रथ धातु से कथन प्रत्यय जोड़कर रथ शब्द बनता है। रम्यतेत्र अनेन इत्यादि विग्रह है। यान बोलते तो जाना ही जाना अर्थ निकलता है। भाषा में या को जा कर दिया, संसरण मात्र अर्थ आता। संसरण ही संसार है, चलना ही चलना वहां रहता है। रथ कहने से गंतव्य स्थान पहुंचाने वाला ऐसा सामान्य अर्थ है ही। रमण साधन यह भी अर्थ निकलता है। रम धातु से ही राम शब्द भी होता है। रमन्ते योगिनो अस्मिन् निति रामः, योगी जिसमें रमण करते हैं वह राम है। रमन्ते योगिनो अस्मिन् नीति रामः, रमन्ते योगिनो अस्मिन् निति रामः, योगी जिसमें रमण करते हैं वह राम है। अभेद रूप से रहकर योगी आनंदित होते हैं, उसी आनंद का साधन रथ है। वह आनंद मोक्ष रूपी आनंद है, स्वरूपानंद है। उसका साधन यह मानव शरीर रूप रथ है। ये जो हमारा शरीर है यही इसका साधन है, यही इसका रथ है। यह आत्मा रथी है, रथ स्वामी है। आत्मा रथी है, रथ स्वामी है। यह इस रथ के द्वारा गंतव्य स्थान पहुंचकर आनंद पा सकता है। हमारे शरीर का उपयोग करके हम गंतव्य स्थान पर जा सकते हैं और आनंद पा सकते हैं। गंतव्य स्थान रस रूप है। रसागम हे वायम लब्ध्वा नंदी भवती, रस पाकर ही यह आनंदित होता है। गंतव्य स्थान पहुंचने के लिए घोड़े के रूप में इंद्रियां हैं। इंद्रियाणि हयानाहु, इंद्रियों को घोड़ा बताया है। क्या इंद्रियों से अतीन्द्रिय रस तक पहुंचना संभव है? नहीं। क्या इंद्रियों से अतीन्द्रिय रस तक पहुंचना संभव है? नहीं। तो फिर रथ भी तो गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचता, शरीर भी नहीं पहुंचता। प्रसाद में विश्राम कक्षा तक पहुंचना है, क्या वहां रथ जाता है? रथ से उतरकर ही प्रसाद में प्रविष्ट होते हैं, शयन कक्ष में पहुंचते हैं। वैसे इस शरीर को भी त्यागने पर ही विदेह कैवल्य प्राप्त होता है। हाँ, महल तक पहुंच सकते हैं, वहां के दिव्य सुगंध, दिव्य रूप आदि
का रथ में बैठे बैठे भी अनुभव कर सकते हैं। जीवन मुक्ति सुख तो इस शरीर में रहते रहते भी मिल सकता है, वहां तक इंद्रियां भी पहुंच सकती हैं। कश्चेधीरः प्रद्यगात्मानमैक्षदावृक्त चक्षुः, ऐसा बताया है। धीर पुरुष इंद्रियों को विषयों से परावृत कर आत्मा की ओर लगाते हैं। धीर पुरुष इंद्रियों को विषयों से परावृत कर आत्मा की ओर लगाते हैं। कश्चित धीरः प्रद्यगात्मानमैक्षदावृक्त चक्षुः, अतः घोड़ों की कोई समस्या नहीं है, समस्या है सारथी की। सारथी को प्रशिक्षित होना आवश्यक है, सारथी को प्रेरित करना भी आवश्यक है। और सारथी कौन है? सारथी है बुद्धि। हमने पहले पढ़ा, आत्मा रथी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रिया घोड़े हैं। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु, बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च। तो बुद्धि को सही करना आवश्यक है। सारथी को प्रेरित करना आवश्यक है। सारथी को सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि जिसका वह सारथी है वह रथ है, घर नहीं, रथी भी नहीं। कोई ड्राइवर यह समझे कि यह गाड़ी घर है, रहने का स्थान है, तो गलत होगा। कोई टैक्सी मैन अपने प्राइवेट टैक्सी को घर समझकर उसी में खाना पीना सोना शुरू नहीं करता, उसी में रसोई बनाना शुरू नहीं करता। वह गमनार्थ जाने के लिए खरीदा है। कोई कोई टैक्सी वाले बंबई जैसे शहरों में टैक्सी में ही सोते और विश्राम करते भी हैं, किंतु उनको भी यह मालूम है कि यह घर नहीं है, यातायात का साधन है। सेठ तो उसे साधन मात्र समझता है, परंतु शरीर रूपी रथ में कुछ और ही बात होने लगी। इसको तो सारथी और रथी ने अपना ही घर समझ लिया। गंतव्य स्थान तक या घर तक पहुंचने के बाद इसे छोड़ना है, घर दूसरा ही है, वहां इससे उतरकर जाना है, इस बात को भूल गए। शरीर रूपी रथ में कुछ विशेषता है। टैक्सी चालू करो और चलाओ तो ही चलती है, इस शरीर रथ को चालू करने की जरूरत नहीं है। इसके इंजन के स्थान में इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, वह स्वयं चेतन से होने से चलते रहते हैं। इंद्रियां अचेतन होने पर भी चेतन जैसी हो गई हैं। अचेतनम चेतनावदीव लिंगम, यह स्वयं चलती है। विषयांस्तेषु गोचरान, ये विषयों की ओर चलती रहती है। सारथी यदि सो गया तो ये घोड़े रथ को खड्डे में अवश्य ले जाकर गिराएंगे। इस सारथी को तो सदा सचेत रहना होगा, साथ साथ प्रशिक्षित भी। उसे रथ को कैसे ले जाना, कहाँ ले जाना, इन दोनों का ज्ञान होना चाहिए। घोड़ों को कैसे आगे बढ़ाना है, कहाँ मोड़ना है, कहाँ रोकना है, कैसे रोकना है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। किंतु यह काम स्वयं बुद्धि रूपी सारथी कर लेगा, और प्रेरणा भी बुद्धि कर सकती है। यस्त्वा विज्ञानवान भवत्य मनस्कः सदा शुचिः नश्च न सा तत्पदमाप्नोति संसारम चाधिगच्छति। जो रथी सारथी रहित होगा, या जो सारथी विशिष्ट ज्ञान रहित होगा, प्रशिक्षित नहीं होगा, प्रेरित नहीं होगा, वह अमनस्क ही होगा। हाथ में लगाम रखेगा नहीं, लगाम छोड़कर बैठा रहेगा, और वह हमेशा अशुचि होगा। अशुचि, क्योंकि इंद्रियां भटकाने वाली होंगी, वे ही तो विषयाहरण से अशुचि होती हैं। वह इस परम पद को तो क्या प्राप्त होगा? असत की ओर उसकी गति होगी, वह संसार कांतार में जा फंसेगा। यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचिः सोऽध्वनः पारमाम्नोति यस्माद् भूयो न जायते। इसके विपरीत जो रथी सारथी सहित होगा, या जो सारथी विशिष्ट ज्ञान वाला प्रशिक्षित होगा, प्रेरित होगा, उसके हाथ में लगाम रहेगा। उसकी इंद्रियां परमार्थ की ओर प्रत्यावर्तित होने से शुचि होंगी। वह गंतव्य अधवा का पार पाएगा, जहां अपना घर है, जहां से फिर भटकना नहीं होगा। इन सब विवरणों का सारांश है कि बुद्धि सारथी को बराबर बनाए रखो। बात यह है कि बुद्धि को ठीक करके रखो, बुद्धि को गड़बड़ाने मत दो। बुद्धि ही सारथी है, उसको बराबर बनाए रखो। उसके लिए अत्यधिक सावधान रहना चाहिए।
एक कार का ड्राइवर मुझे बोलने लगा कि गाड़ी में बैठकर सेठ लोग क्या बोलते हैं यह हमें प्रायः पता नहीं रहता, क्योंकि हमारी सभी इंद्रियां काम करती रहती हैं। आंखों से आमने सामने अगल बगल सर्वत्र निगाह रखनी पड़ती है, नहीं तो एक्सीडेंट होने में देर नहीं लगती। कान से दूसरी मोटर के हॉर्न आदि पर ध्यान रखना पड़ता है। कोई दरवाजा बराबर बंद ना हो तो आवाज से हम जान लेते हैं गाड़ी गर्म हो रही है, इंजन कैसा है, यह त्वगिंदीय से पता करना पड़ता है। कुछ अंदर जलने लगा तो सूंघ कर मालूम कर लेते हैं। हाथ से हैंडल संभालो, पांव से ब्रेक आदि संभालो। दूसरों को संबोधित करने के लिए वाणी का भी उपयोग करना पड़ता है। प्रायः समस्त इंद्रियों को ठीक तरह से उपयोग करना पड़ता है, अत्यंत सावधानी रखनी पड़ती है। बुद्धिसारथी की भी ऐसी ही बात है। प्रत्येक इंद्रियों की गति का उसे पता होना चाहिए, उनसे भी काम लेना है। इस बुद्धि सारथी को प्रशिक्षण तथा प्रेरणा कहाँ से कैसे प्राप्त हो, यह विचार विषय है, क्योंकि उसका बिना मूल्यवान मानव जीवन व्यर्थ होगा, पशु तुल्य होगा। उसके उत्तर में कहा जा रहा है कि इसको प्रेरणा देने वाली गायत्री है। मूल्य मानव जीवन व्यर्थ होगा, ठीक है, मानव जीवन व्यर्थ होगा, और इसलिए प्रेरणा की आवश्यक है। और प्रेरणा कहाँ से है, तो गायत्री से। इसको प्रेरणा स्वयं रथी नहीं दे सकता, वह तो बैठा है, जहाँ ले जाओ वहाँ जाता है, और अन्यत्र जाना चाहेगा तो भी उसके हाथ में कोई सत्ता नहीं है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम तो सचिवों के हाथ में होते हैं, उसके अनुसार ही राष्ट्रपति चलेगा। यद्यपि प्रशिक्षण सत्संग से, शास्त्र अध्ययन आदि से हो सकता है, परंतु वह प्रायः शिक्षण मात्र होता है, प्रशिक्षण नहीं। नलपाक पुस्तक का अध्ययन या अनुभवियों की पाक वार्ता का सम्यक श्रवण शिक्षण हो सकता है, प्रशिक्षण नहीं। प्रशिक्षण वह है जो कार्यान्वयन में समर्थ हो। नलपाक पढ़कर कोई रसोई नहीं बना सकता। इसी प्रकार सत्संग आदि से शिक्षण मिलेगा, किंतु कार्यान्वयन सामर्थ्य तो आंतरिक शक्ति के उद्भव से ही संभव है। आंतरिक शक्ति के उद्भव का साधन गायत्री है। शक्ति यद्यपि हमारे अंदर ही है और उद्भाविता परमेश्वर है, किंतु उसका उद्भव अर्थात प्राकट्य गायत्री से होगा। इस बात को योगी याज्ञवल्क ने सदृष्टांत बताया है। क्या कहा है योगी याज्ञवल्क ने, ऋषि ने कहा है, गवाम सर्पी शरीरस्थम न करोत्यपंग पोषणम निःसृतम कर्म संयुक्तम पुनस्तासाम तदौषधम एषम सा ही शरीरस्थः सर्पीर्व परमेश्वरः विनाचोपासनादेव न करोति हितम नृषु। एक किसान के पास बड़ी दुधारू गाय थी, 20 किलो दूध देती थी। वह बीमार हो गई, अंग सूखने लगा, तो किसान वैद्य के पास गया। वैद्य ने कहा, घी में गिलोय गुड़ूची मिलाकर गाय को दो। किसान घर में गया और उसे गुरूच के पत्ते, लता आदि खूब खिलाया, लेकिन गाय ठीक नहीं हुई। वह वैद्य के पास शिकायत लेकर आया, बोला कि आपकी दवा के बावजूद भी गाय मरने जा रही है। वैद्य ने कहा, क्या दवा तुमने खिलाई? बोला, घी और गुड़ूची। वैद्य ने पूछा, दोनों को किस प्रकार किस मात्रा में मिलाया? किसान ने कहा, मिलाने की क्या जरूरत थी, गऊ के अंदर दूध और उसमें घी है, अपने आप दोनों मिल जाएंगी। मात्रा का हिसाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पेट में जितना घी है सब मिलने वाला ही है। वैद्य ने कहा, तब गुड़ूची का तत्व भी गाय के शरीर में मिलेगा। अरे भोंदू, दवा ऐसी नहीं होती। इस प्रकार परमेश्वर हृदय में है, वह बुद्धि का प्रचोदयिता है। परमेश्वर हृदय में है, वह बुद्धि का प्रचोदयिता है। धियो यो, यहाँ यो का अर्थ परमेश्वर ही है, किंतु गायत्री से प्रसन्न हुए बिना, प्रकट हुए बिना वह बुद्धि की शक्ति को प्रादुर्भूत नहीं करता। गायत्री से प्रसादित परमेश्वर ही प्रचोदिता है, शक्तिदाता है। दूसरा प्रश्न यह था कि गायत्री की उपासना करने वालों में भी वह चमत्कारिक शक्ति दिखाई नहीं पड़ती, उसका कारण क्या है? क्या उसके लिए अन्य सहकारी की आवश्यकता है? उसका उत्तर सकारात्मक है, यानी हाँ जी, सहकारी की आवश्यकता है। मंत्र जाप मंत्र जप मात्र, सिर्फ मंत्र जप करने से, शक्ति कारक होने पर भी, सहकारी के होने पर ही वह पूर्ण रूप से विकसित होगा।
एक गायत्री की उपासना है, दूसरा अर्थ ज्ञान है। गायत्री से सूर्य की उपासना, अन्य देवों की उपासना एवं परमात्मा की उपासना होती है। इसका निरूपण आगे होगा, किंतु स्वयं गायत्री की भी उपासना होती है। उसको समझने पर गायत्री का महत्व ज्ञान होने से उसका प्रभाव बढ़ जाता है। मनु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद से गायत्री के 3 पादों का दोहन परमेष्ठी प्रजापति ने किया। जैसे गाय से दूध दुहा जाता है, वही गाय का सार है, वैसे श्रुति रूपी गायों से गायत्री क्षीर का दोहन किया। त्रिभ्या एव तु वेदेभ्यः पादम पादम दु दुहृतम पादम दुहृतम तदित्यरचोस्याः सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापति। त्रिभ्या एव तु वेदेभ्यः पादम पादम दु दुहतम तदित्यरचोस्याः सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापति। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद से गायत्री के 3 पादों का दोहन परमेष्ठी प्रजापति ने किया। जैसे गाय से दूध दुहा जाता है, वही गाय का सार है, वैसे श्रुति रूपी गायों से गायत्री क्षीर का दोहन किया। तदि त युरुचः तदि त युरुचः तत्सवितुर्वरेण्यम इत्यादि ऋचा का मतलब यह वेदों का सार है। अतएव पुनः कहा, एतदक्षरमेतां च जपन् व्याहृति पूर्विकां संध्यायोर्वेद विप्रो वेद पुण्येन युज्यते। इस ओमकार अक्षर को और व्याहृति सहित गायत्री को प्रातः काल और सायंकाल संध्या समय में जप करने मात्र से 3 वेदों के अध्ययन का पुण्य प्राप्त होता है। इस ओमकार अक्षर को और व्याहृति सहित गायत्री को, यानी पूरा जो हम गायत्री मंत्र जो सामान्यतः पढ़ते हैं ओम भूर्भुवः से लेके अंत तक, उसको प्रातः और सायंकाल संध्या समय में जप करने से 3 वेदों के अध्ययन का पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार समझकर उत्कर्ष दृष्टि प्रथम गायत्री वर्णों में करनी चाहिए और पूर्वोक्त रीत्या गायत्री के स्वरूप ही महिमा का चिंतन करना चाहिए। कर्म पुराण में एवं काशी खंड आदि में बताया गया है, गायत्री वेद जननी गायत्री लोक पावनी न गायत्र्या परम जप्यमेतद् विज्ञानमुच्यते। गायत्री वेदों की जननी है, गायत्री समस्त लोक को पावन करती है। गायत्री से बढ़कर अन्य कोई जप योग्य मंत्र नहीं है, यह ब्रह्म साक्षात्कार का साधन है। इसी प्रकार योगी याज्ञवल्क्य आदि का भी वचन पहले दिखाया जा चुका है। एक कथा इस प्रकार प्रसिद्ध है कि एक ब्राह्मण गंगा किनारे बैठकर दीर्घ समय से गायत्री जप कर रहा था। दूसरा एक शमशानिक भी वहां कुछ दिन से बैठने लगा। एक दिन जप के समय ब्राह्मण के कंधे पर रखा गमछा नीचे गिर गया। ब्राह्मण बुर्ज पर था, नीचे उतरने पर ही कपड़ा ले सकता था। द्वितीय उत्तरीय के बिना कर्म नहीं करना चाहिए। तब उसे उठाने वह आसन से उठने लगा। शमशानिक ने कहा कि आपकी गायत्री में इतनी भी शक्ति नहीं है कि आप उसे ऊपर मंत्र शक्ति से उठा लें। तो ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास वैसी शक्ति नहीं है। शूद्र ने कहा, तब मेरा भूत मंत्र गायत्री से श्रेष्ठ है, देखो मैं मंत्र शक्ति से उसे ऊपर उठाता हूं। उसने भूतावाहन किया, उसने गमछे को तुरंत ऊपर उठाकर रख दिया। ब्राह्मण को इतना आश्चर्य हुआ कि सारी जिंदगी गायत्री जप कर बिताई, मुझे कुछ नहीं मिला, और इस के भूत मंत्र ही इससे अच्छा है। ब्राह्मण ने शूद्र से भूत मंत्र मांगा, उसने दिया और कहा, 48 दिन शमशान में बैठकर इसका जप करो, तुम्हें भूत दर्शन देगा और वह वश में आ जाएगा। ब्राह्मण रात को 12 बजे शमशान में जाकर जप करने लगा। 48वें दिन आवाज आई, हे विप्र, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम कौन हो? ब्राह्मण ने पूछा, मैं तुम्हारा उपास्य भूत हूं। भूत ने कहा, ब्राह्मण मेरे सामने तो आओ, दर्शन कर लूं। भूत, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता हूं। क्यों? तुम्हारे गायत्री मंत्र का इतना उग्र तेज है कि मैं सामने आते ही भस्म हो जाऊंगा। ब्राह्मण ने कहा, तब तुम जाओ, मेरी गायत्री ही ठीक है। ब्राह्मण ने आकर गंगा स्नान कर प्रायश्चित किया और पुनः गायत्री जप करने लगा। तात्पर्य अर्थ यही है कि गायत्री की महिमा अपार है। उसे समझो तो गायत्री पर अटल श्रद्धा होगी और वह फलदायिनी होगी।
गायत्री के प्रत्येक अक्षर की महिमा है और वह भी अपार है। प्रत्येक अक्षर के देवता हैं, देवियां हैं, अर्थ भी हैं, ऋषि हैं और छंद आदि भी हैं। यद्यपि संप्रदाय भेद से अनेक प्रकार से ऋषि छंद आदि हैं, तथापि उपनिषद के अनुसार यहाँ दिग्दर्शन मात्र कराते हैं। एक एक अक्षर के ऋष्यादि देखें। वसिष्ठश्च भरद्वाजो गार्ग्यश्चाप्युपमन्युवत् भृगुः शाण्डिल्य लोहिता विष्णु शातातपा अपि सनत्कुमारो व्यासश्च शुकः किंच पराशरः पुण्ड्रका क्रतु दक्षाश्च कश्यपोत्री रगस्त्यवत् उददालकोऽङ्गिरा नाभिकेतुर्मुद्गल एव च ऋषयोऽङ्गिरसश्चैव विश्वामित्रस्तथैव च। तत् का वशिष्ठ ऋषि, स का भारद्वाज, वी का गार्ग्य या गर्ग इत्यादि दृष्टव्य है। त्रिरावत्या हि गायत्री त्रिष्टुप च जगति तथा छान्द्यासयनुपुष्ट पंडितश्च बृहत्युष्णिक तदा तथादिति। तत् का गायत्री छंद, स का त्रिष्टुप छंद, वी का जगति, तुर का अनुष्टुप, वा का पंक्तिक, रे का बृहति, णी का उष्णिक, यम का अदिति, फिर उन्हीं की अद्वितीय तृतीय आवृत्ति। इसी प्रकार 24 अक्षरों के 24 देवता हैं। अग्नि प्रजापति सोम ईशानोर्को गृहेश्वर मित्रो भगोर्यमा चैव सविता तत् सविता त्वष्टटा पूषणौ इंद्राग्निर्वायुरेवापि वामदेवस्तथैव च मित्रावरुण भ्रातृव्य विष्णुवो वामनस्तथा विश्वदेवश्च रुद्रश्च कुबेरेश कुबेरेश कुबेराश्वाश्विनापि विश्वदेवश्च रुद्रश्च कुबेराश्वी वनावपि ब्रह्मा चेत्यक्षराणां स्युश्चतुर्विशति देवताः। पूर्ववत तत् का अग्नि देवता, स का प्रजापति देवता इत्यादि 24 अक्षरों की 24 देवियां भी हैं। वे हैं प्रहलादिनी, प्रज्ञा, विश्वभद्रा इत्यादि। प्रहलादिनी तथा प्रज्ञा, विश्वभद्रा, विलासिनी, प्रभाशांता च मां कांति, स्पर्शा दुर्गा, सरस्वती, विरूपा च विशालाक्षी, शालिनी, व्यापिनी तथा विमला च तमोहारी, स्यात् सूक्ष्मा वयवापि च पद्मालया च विरजा, विश्वरूपा तथैव च भद्रा शिवा चतुर्विंशा, भद्रा शिवा चतुर्विंशा देवी स्यात् सर्वतोमुखी। उपनिषदों में पुष्प सादृश्यादि भी बताया है। अधिकस्याधिकम फलम, इस न्याय से जितना हो सके उतना अधिकाधिक संपादन करने का प्रयास करना चाहिए। गायत्री के अर्थ के बारे में आगे बताया ही जाएगा, परंतु आगे विवरण प्रसिद्ध पदार्थों को लेकर होगा। गायत्री के प्रत्येक अक्षरों का भी अर्थ विष्णु धर्मोत्तर आदि पुराणों में बताया है। 24 अक्षरों के 24 तत्व ही अर्थ वहां कहा गया है। कर्मन कर्मेन्द्रियाणि पंचैव पंचबुद्धीन्द्रियाणि च पंचबुद्धीन्द्रियार्थाश्वभूतानां चैव पंचकम मनोबुद्धिस्तथैवात्मा अव्यक्तं च यदुक्तमं चतुर्विशतिरेतानि गायत्र्या अक्षराणि च। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 विषय शब्द स्पर्श आदि, 5 भूत पृथ्वी जल आदि और 4 हैं मन बुद्धि महत्त्व और अव्यक्त। किंतु 25वां मुख्य तत्व आत्मा परमात्मा कैसे छूट गया? छूटा नहीं। पूरी गायत्री का पर ब्रह्म अर्थ है। व्यास वचन है, न भिन्ना प्रतिपद्येत गायत्री ब्रह्मणा सह सोहमस्मीत्युपासीत विधिना येन केनचित्। गायत्री को ब्रह्म से भिन्न मत समझो, वही मैं हूं ऐसा उपासना करो। क्यों गायत्री और ब्रह्म में भेद नहीं? गायत्री वाचक है, सविता वाच्य है, सविता ब्रह्म है। वाच्य वाचक संबंधो गायत्र्या सवितुर्द्वयोः वाच्योऽसौ सविता साक्षात गायत्री वाचिका परा। ऐसा काशीखंड एवं विष्णु धर्मोत्तर में बताया है। और वाच्य वाचक की एकता याज्ञवल्क्य ने बताई है। तथा ब्रह्म विष्णु महेश्वरादि भी संग्रहित हैं। गायत्रेव परो विष्णुर्गायत्रेव परा शिवः गायत्रेव परो ब्रह्म गायत्रेव त्रय्यतः। ऐसा काशी खंड में बताया है। इसलिए छांदोक्य में बताया है, गायत्री वा इदम सर्वम भूतम यदिदम किंच
बृहद आरण्यक में प्रकारांतर से कुछ बातें बताई हैं। गायत्री का प्रथम पाद अष्टाक्षर भूमि अंतरिक्ष और द्यौ यानी स्वर्ग है। ऋक यजु साम ये द्वितीय पाद है। प्राण अपान व्यान ये तृतीय पाद है इत्यादि। इन सब का तात्पर्य है कि गायत्री के प्रत्येक पाद की और गायत्री के प्रत्येक अक्षर की अलग अलग महिमा होने से बड़े ध्यान से अक्षर मात्रा स्वर आदि का उच्चारण करते हुए जप करना चाहिए और अक्षर पद आदि की उपासना भी करनी चाहिए, जिससे गायत्री जप शक्तिशाली हो। जब उपासना आदि के लिए मंत्रों के ऋषि छंद और देवता का जानना परम आवश्यक है, इसलिए प्रत्येक अक्षर के ऋषि आदि हमने संक्षेप में बताया। पूरी गायत्री का हम पहले ही बता चुके हैं। विश्वामित्र ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं और सविता देवता हैं। तो इस प्रकार हमने 32, क्षमा करें, 33वें पृष्ठ तक पढ़ा। चौथे भाग को हमने पढ़ा। 5वें भाग से हम आगे पढ़ते रहेंगे और इसी क्रम से जो है पढ़ते हुए इस पुस्तक को आपके साथ साझा करेंगे। गायत्री मंत्र के बारे में हम जितना जानते हैं उतना ही हम इससे प्रभावित होते हैं, और इसका अर्थ यह भी हुआ कि हमें गायत्री मंत्र को अपने जीवन में उतारना चाहिए और समझ के साथ उतारना चाहिए। से मौखिक बोल बोल के मंत्रोच्चारण से भी फल होता है, लेकिन इसके अर्थ का अनुसंधान करते हुए अगर हम और ध्यान से इसको पढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे और इसके दिखाए हुए रास्ते पे चलते रहेंगे तो हमारा कल्याण होगा, बालकों का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। ऐसी आशा है, ऐसी आशा है। हरि ओम। ओम नमः शिवाय। आज होलिका दहन का भी दिन है, तो बहुत शुभ दिवस है। नववर्ष भी प्रारंभ होगा, चैत्र मास प्रथमा। तो सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।